बड़ी खुशी हो रही है आज मुझे ये बताते हुए अपने दर्शकों को। आज मेरे साथ एक जाने माने लीगल प्रैक्टिशनर डॉक्टर साहिल मल्होत्रा हैं जो शिमला से हैं और इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में वो मुकाम हासिल किया जिसको हासिल करने के लिए शायद डिकेड्स लग जाते हैं लोगों को। साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट शो में। आज मेरे दर्शक आपसे वो चीजें जानना चाहेंगे जिनका उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल हो सकता है। साहिल जी, मुबारक हो आपको पहले तो कि आपने बहुत छोटी सी उम्र में यह मुकाम हासिल किया। मैं जानना चाहता हूँ आपने किस उम्र में ये डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की? First of all, thank you so much, Harish Uncle, and namaste to all the viewers who are watching. So, मैंने लॉ की जर्नी स्टार्ट की थी even before that when I was in school. So, although I don't remember this incident very correctly, but one of my friend who recently met me, she told me that I had told her way back in school that I wanted to be an advocate. Great. Although I did not had this memory, this was way back in when I was in class 6th. So this memory was reminded to me by her. So what happened after that, मैं हिंदी में भी बोलूँगा, बीच में मैं इंग्लिश का भी प्रयोग करूँगा। कोई बात नहीं, हमारे सब तरह के दर्शक हैं। Thank you so much. I really feel very feel comfortable over here. So it was predetermined that I wanted to be an advocate, and the happiest day of my life was when I got enrolled as an advocate with the Bar Council of Himachal Pradesh. Great. This happened, my legal journey started in the year 2012. From 2012 till 2017, I completed my law BA LLB from Himachal Pradesh University. That was a 5-year integrated course. Thereupon, I pursued my master's in law, LLM. That was done in cyber security, no, not cyber laws, rather it was done in data protection laws, as well as my dissertation was written in narcotic laws as well as drug laws. Thereafter, I pursued in the same year, in 2018, I was enrolled in a PhD coursework, and I chose PhD because I thought that I have deep interest in pursuing research, and for that purpose, I thought that since cybercrime was the most relevant topic at that point of time, and now since AI has also been introduced in the legal framework, so I thought it would be best if I complete or if I pursue my further research studies in cyber laws. So, in the year 2023, was awarded with the PhD degree from HPU, that is National Pradesh University, and my PhD was completed in from NLU, that is Himachal Pradesh National Law University. ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आपका ये क्वालिफिकेशन का सफरनामा। पर मैं जानना चाहूंगा कि इसमें सबसे ज्यादा मोटिवेशन आपको किससे मिला? I think with the blessings of my parents, my grandparents, they have always been my support. Plus the support, the never-ending support of Almighty God, that is always there with me. And the motivating drive was that I don't want to sit idle for even one single day. So whenever I go back home, and sleep at the end of the day, if I feel that I have not done something in that day, if I have not done something productive during the day, I used to feel guilty. So, in order to avoid that guilt, I thought that I need to do something. I have to be on my toes all the time. And with the blessings of everyone around, especially you all, so that is how I was able to accomplish all that. अब तो मैं आपको डॉक्टर साहब के नाम से बुलाऊंगा। For you, I'll be always Sahil. डॉक्टर साहिल मल्होत्रा। मैं जानना चाहूंगा और मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इतना सब कुछ पा लेने के बाद क्या आपको कभी ये आता है कि आपने बहुत कुछ पा लिया और कोई इच्छा नहीं रही? No, see, honestly speaking, I feel that whatever I have achieved is not even the tip of the iceberg. There is a long way for me. Law is like an ocean, and even if I have filled up few buckets, that is nothing in front of the ocean. So I really feel that I have got nothing. I still need to be on the ground, and I need to work more hard, even more harder from my past days. I need to be consistent in my field.
अभी प्रेजेंटली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना हिमाचल हाई कोर्ट में। Yes. तो आप प्रैक्टिस करते हुए आपके पास तरह तरह की क्लाइंट आते हैं, उनके तरह तरह के लीगल जो मैटर होते हैं। आजकल आजकल किस तरह के ज्यादा मैटर्स आपके पास आ रहे Uh, Mostly since I practice in High Court, तो High Court में हर तरीके की litigation है. In Himachal High Court, since it is a small High Court, so the litigation over there mostly comprises of service matters. Then on the criminal side, there are bail matters pertaining to rape, murder, POCSO, NDPS, all of these things are going on. Apart from that, there is inherent rise in the abuse of Domestic Violence Act or the provisions of earlier it was 498A in the IPC. Now it has been changed. The new provisions of BNS. Even there is a very recent pronouncement by the Honorable Supreme Court which says that there has been an apparent rise in the misuse of women laws in terms of cruelty or so many other things. So all of those things are there which we are working upon. उसके अलावा there are civil disputes, land के झगड़े हैं. Then a lot many companies have recently come up in Himachal, so there are disputes pertaining to industries and companies. All type of matters. Mostly all type of matters. जब भी आपने 498A के बारे में बोला, सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन है, थोड़ा रोशनी डालें, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं ये क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। So हो क्या रहा है आजकल, husband and wife, let's not say husband and wife, let's just say there is a couple. There is a couple. Let's not even say that they are married. Let's just assume कि आजकल का जो सिनेरियो है हम बिल्कुल प्रैक्टिकल उसी की बात करेंगे. So what happens? You can say live in. Even not live in. I am going one more step ahead of that. I am saying that there is a couple. Yes. We are not going to define their relationship in any terms. ठीक है. एक लड़का एक लड़की है. They are in love. They decide कि वो एक साथ रहना चाहेंगे. Now what happens is that a girl, there is certain inherent things in a girl that she decides that she has got some sort of expectations from a boy. And likewise, the boy has certain amount of expectations from a girl. It's a reciprocal thing. It's a reciprocal thing. Now the problem comes when there is legal jugglery involved in this. जब तक वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, there is no problem. But when they look at the side of the law, which if I may call that it is not equal, it is more towards feminine side, it is less towards the male side. The boy side. I am not saying that this because I am a boy. Had I been a girl, I would have had the same view, considering the law that we have in place. Yes, of course. Now what happens is, now they decide that they want to take their relation a step forward, so they get married. Eventually, once they are married, then there are certain rights which a female enjoys, but there is no right which a guy can enjoy. This is one-sided. This is completely one-sided. Yeah. Now, for that purpose, if the girl decides that she is not happy in the company of the guy, so she can move out of the house any day. Yeah. And the guy has no remedy at all to bring her back. If she doesn't want. If she doesn't want to, where will the guy go? Yeah. What remedy would he have? At best, he could go to the nearby station and complain and say that, okay, please help me out. Please help me get my wife back. All of these things. But legally speaking, there is no particular remedy. Yeah. Now what happens if the same situation is there and if the guy runs away from the marriage? Now the girl can simply go and file a complaint under 498A that this guy abused me, misused me, and now he has ran off. Oh. This is the trouble that we have. Yes. So what Supreme Court says in this? Now what Supreme Court has said, understanding the peculiar problems that is coming day by day, now Supreme Court says that you need to carve. So in cases where section 498A is involved, in cases where the dispute is between husband and wife, it is very important not to immediately lodge an FIR. First of all, to conduct a prima facie inquiry. Yeah. To conduct an inquiry, to look into the matter carefully, also listen to the boy side. What are the reasons? Why you left the company? Why you left your matrimonial house? All of those questions are asked. And if
something genuinely is found, then only a case is registered now. So this is a good step that has been taken by Intervention of Supreme Court is it was you see, must. It was must. It was must, and Supreme Court took the right call. Yeah. So compliment for Supreme Court. That's there, but we are in no position to compliment. Those are my lord. तो डॉक्टर साहिल, आपने जैसा बताया कि आपने ये सारा अपना पीएचडी डॉक्टरेट जो है साइबर सिक्योरिटी लॉ में किया है। आई शुड से साइबर सिक्योरिटी लॉज, मोर पर्टिकुलरली इन साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स कैसे आया आपके दिमाग में कि साइबर क्राइम को ही आपने क्यों चुना? If I honestly tell you, off the record, but I may say it otherwise as well. I had discussed with one of my friend. He has also recently pursued his PhD. If I speak with utmost honesty, तो मैं ये कहूँगा, I was in discussion with one of my friend. He has also recently completed his PhD. He did his PhD in sports law. I cannot name him because he is also holding certain post right now. But we both discussed while we were both together in LLM. Our discussion was, we must choose a topic in which we must gain more knowledge than our own guide and then our own supervisor. Because if we are in a position where we know more than supervisor, the supervisor is not going to ask us lot many questions in the final submission of PhD thesis, and thereby we'll easily go through the PhD thesis. So this is the honest truth. Yeah. So having said that, the other reasons were I am more towards my likingness towards technology, towards AI, and towards other nuances of law is more. So that is why I thought, and more particularly because now what has happened, the traditional crimes, जो ट्रेडिशनल क्राइम्स होते हैं ना, जैसे कि चोरी चकारी, दोज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय साइबर क्राइम्स। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। पहले क्या होता था, अगर मान लो 4 बंदे प्लानिंग करते हैं कि उन्हें बैंक लूटना है, तो उन्हें बहुत सारे झमेले करने पड़ते थे। उन्हें बैंक फिजिकली जाना पड़ेगा, फिर गार्ड को किसी तरीके से उसका ध्यान भटकाना पड़ेगा, फिर ताले तोड़ने पड़ेंगे, फिजिकल चोरी करनी पड़ेगी, गन लेके जानी पड़ेगी, और पकड़ने का डर ज्यादा है, कैजुअलिटी हो सकती है, and then they have to take that loaded cash, put it in the car, and then take away the car. So in order to avoid all that, now what has happened, अब वो सिर्फ कंप्यूटर पे बैठेंगे, वो हैक करेंगे आराम से, वो पासकोड्स वगैरह को ब्रीच करके, उनके लॉगिन सिस्टम्स को ब्रीच करके फटाफट अकाउंट ट्रांसफर करेंगे किसी एक्स अकाउंट में, and then they have looted the bank. So the procedure of the traditional crimes have been simplified by the cyber crimes. That makes it more interesting. That is why I wanted to pursue cyber crimes, considering the fact कि अब traditional crimes तो नहीं रहे. Now the wrongdoers or the criminals, they are preferring cyber crimes over the other crimes. अभी पिछले दिनों एक आम आदमी को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता, आप ज्यादा समझते होंगे, सरकार ने कुछ कानून बदले या कानूनों के प्रावधान बदले, आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता बना दिया। ये सब क्या है, इस पर रोशनी डालें, क्योंकि मेरे दर्शक बहुत से फोन कॉल आते हैं मुझे कि किसी ऐसे लॉयर को आप अपने एपिसोड में लाओ ताकि वो ये हमारे सवालों के जवाब दे सके। अगर देखा जाए, इफ वी सिंप्लीफाई इट, तो इतना घबराने की कोई बात नहीं है। पहले होता था आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, अब है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। नाम बदला है, ऑल्दो चेंजेस हुए हैं, बट दोज आर नॉट सम काइंड ऑफ मेजर चेंजेस। आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने आईपीसी को बिल्कुल ही रद्द कर दिया और एक नया कानून ले आए, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस जो आईपीसी में थी वो अभी भी हैं, वो बीएनएस में है। फर्क क्या आया कि कहीं अगर त्रुटि थी आईपीसी में, मान लो कहीं लगा सरकार को कि आईपीसी की किसी एक प्रोविजन में सजा कम है या ज्यादा है, ज्यादा तो नहीं, कम ही लेंगे हम, कम है, या किसी लॉ में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो उन त्रुटियों को पूरा करके उन्होंने नई किताब में डाल दिया, जिसका कि नाम बीएनएस दे दिया। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस, मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि 85 to 90% ऑफ द प्रोविजंस आर सेम। अब चेंजेस क्या है, आपने देखा होगा कि जैसे हम यूएस के लॉज की बात करें या हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, उनके लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्टनेस की वजह क्या होती है? देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड डेटरेंस थ्योरी
ऑफ पनिशमेंट, उसका मतलब उसका इम्पैक्ट ये होता है कि एक आदमी अगर वो गलत करना चाहे तो उसके मन में डर डाला जाता है कि देखो अगर आप गलत करोगे तो आपको इतनी कठोर सजा मिलेगी। वो एक तरीके से एक डेटरेंट इफेक्ट कॉज करता है आपके ब्रेन में। उस वजह से अगर आपके मन में भी आए कि आपने गलत काम करना है तो आप रुक जाते हैं। 10 में से 8 लोग तो विड्रॉ कर जाएंगे, विड्रॉ कर जाते हैं, परसेंटेज ऑफ क्रिमिनल्स कम हो गई। तो वो जो डेटरेंस थ्योरी है वो जो है वो इंडिया में लाई जा रही है, और जो बीएनएस की जो प्रोविजंस हैं वो भी कहीं ना कहीं डेटरेंस थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए ही बनाई गई है। इंडिया में कानून तो था पर डर नहीं था, पर अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये बीएनएस का ये भी उसी की तरफ एक इनिशिएटिव था कि डर होना चाहिए। डर की वजह से भी जो कुछ लोग हैं क्राइम करने से पीछे हट जाते हैं, डर की वजह से। एग्जैक्टली। तो ये डर का माहौल बनाने में सरकार ने ये जो स्टेप उठाया, कि ये काफी है या इसका आप भी और समझते हैं कि और भी कुछ होना चाहिए? डेफिनेटली और भी होना चाहिए। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। अब देखिए बीएनएस तो एक बना दिया, बीएनएस है एक बहुत ही बड़ा स्टैट्यूट कह लीजिए, जो स्ट्रक्चर है, जो बहुत सारे लॉज हैं। जैसे अब अगर हम बीएनएस की बात करें, बीएनएस में बहुत सारे ऑफेंसेस प्रिस्क्राइब किए गए हैं। कोई गुट बना के चोरी करता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस है, थेफ्ट का है, मर्डर का है, रेप का है। उसी में हमें और स्पेशलाइजेशन आ रही है। जैसे सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए, फॉर चिल्ड्रन के लिए पॉक्सो इनिशिएट हो गया, 2012 से है। अब पॉक्सो में भी बहुत सारे और चेंजेस आ गए हैं। विमेन सेफ्टी के लिए, विमेन प्रोटेक्शन के लिए पॉश है, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो ये इनको और स्पेसिफिक होना पड़ेगा। इनको जितनी भी डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ मर्ज होना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल्स जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उस हिसाब के प्रैक्टिकल लॉज होने चाहिए, विच कुड बी अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस जर्नी और इस राह में हम बढ़ रहे हैं आगे। नो डाउट देयर आर स्पेसिफिक लॉज, स्टैट्यूट्स जो कि उसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, which will eventually help. It will take some time, but क्या आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने सजेशन गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हो? Absolutely. हमारी आई एम एनरोल्ड मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत बड़ी बॉडी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो बहुत सारे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करती है, कंडक्ट करते हैं। यस, अभी रिसेंटली इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024 Bar Council of Himachal Pradesh completed its 75 years, subject to correction, close to 75 years. तो उसमें लॉ मिनिस्टर इनवाइट थे, सुप्रीम कोर्ट जजेस इनवाइट थे, हाई कोर्ट जजेस, चीफ जस्टिसेस, ऑल वर इनवाइटेड ओवर देयर. We got an opportunity to discuss all the legal problems. We had a 3-day conference जिसमें सारे मुद्दों पे exhaustively discussion हुई है. Yes, so there were law ministers, there were other ministers. There were state ministers. Everybody was engaged in that conference, and we are hopeful that some positive results will come out. डॉक्टर साहिल मल्होत्रा, मैं एक बार फिर उस चीज पे आऊंगा जो आजकल बहुत ही चर्चा में है, दहेज और रेप। ये दो क्राइम, मैं इसे क्राइम ही कहूंगा, रेप तो क्राइम है ही, दहेज भी क्राइम है। इसके ऊपर कोई बहुत ऐसा कानून बन जाना चाहिए जिसका ज्यादा से ज्यादा डर रहे लोगों को, जो कि अभी तक नहीं है। मुझे लगता नहीं, ये गलत होगा कहना कि लॉ नहीं है। रिसेंटली आई वाज कंडक्टिंग अ केस, मैं डिटेल्स नहीं बता सकता केस की बिकॉज द मैटर इज सब जुडिस, वो भी अदालत में है। बट और उसमें हम बीएनएस और बीएनएसएस, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, जिसको की रिप्लेस किया है अर्लियर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, उसकी कुछ प्रोविजंस डिस्कस हो रही थी। एंड अब लॉ जो है वो इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है, स्पेशली इन रेप मैटर्स, कि मिनिमम जो सजा है वो ही 10 साल से शुरू हो रही है और मैक्सिमम जो है वो लाइफ जा रही है। अगर आप देखिए इसको ध्यान से, तो दिस इज अ वेरी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। इसके साथ और भी है, आपको फाइन भी इम्पोज करते हैं, जो विक्टिम है उसको कॉम्पनसेशन भी दिया जाता है। सो लॉज आर डूइंग देयर बेस्ट। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन इज, देखिए क्राइम करना, देयर इज क्रिमिनल पैटर्न, देयर इज क्रिमिनल बिहेवियर, देयर इज क्रिमिनल नॉलेज बिहाइंड इट। आप ये नहीं कह सकते कि आप लॉ स्ट्रिक्ट कर दीजिए क्राइम होना बंद हो जाएगा। नो,
क्रिमिनल बिहेवियर की इंसेप्शन बहुत पहले से शुरू हो जाती है. सो अगर हमें क्राइम रोकना है तो हमें वो क्रिमिनल बिहेवियर की इंसेप्शन होने से पहले रोकना पड़ेगा. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आप क्या समझते हैं कि 25 साल के एक लड़के ने क्राइम किया, रेप किया, तो वो क्रिमिनल हो गया? आप उसकी लाइफ जर्नी देखिए. आप 10 साल रिवाइंड करके देखिए कि वो 15 साल की उम्र में उसने क्या किया. क्या वो ट्रेन में बैठा बिना टिकट के? चाहे वो एक पेटी ऑफेंस था, पर वो ऑफेंस तो था. और जब वो ट्रेन में बैठा बिना टिकट के और वो टीसी की नजरों से बच के निकल गया, तो उसके लिए तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, क्रिमिनल जर्नी स्टार्ट हो गई उसकी. क्रिमिनल जर्नी स्टार्ट हो गई एंड ही अचीव्ड समथिंग व्हिच वाज इलीगल. तो उसके वहां से उसके हौसले बढ़े. देन मे बी एट द एज ऑफ 18 उसने कुछ और किया होगा, 20 साल की उम्र में और बड़ा क्राइम किया होगा. दिस इज हाउ. सो वी इट वोंट बी इनकरेक्ट टू से कि आपने लॉज ला दिए, लॉज आर देयर, बट उसकी इंप्लीमेंटेशन इज अनदर इशू. एंड टू कर्ब आउट द क्रिमिनल बिहेवियर इज व्हाट आई फील इज मोर इम्पोर्टेंट. आपके छोटा सा सफर हुआ अभी इस फील्ड में. मैं तो हमेशा जिन लोगों से मिला हूँ, किसी की उम्र 60 साल, किसी की 65 साल, वो एक्सपीरियंस उनके पीछे. और आपने इस छोटी सी उम्र में, मुझे लगता है आप अभी 33 के ही होंगे शायद, या 30 के होंगे. कितने साल उम्र है आपकी, पूछ सकता हूँ मैं? आई जस्ट कंप्लीटेड 30. 30. इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुकाम पा लेने के बाद आपको क्या लगता है कि इस सफर में जो लोग आपसे मिले, उनसे बहुत आपको मदद मिली या उनसे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली? बोथ, मैं दोनों ही कहूंगा. उनसे आगे बढ़ने की मदद भी मिली, उनसे बहुत कुछ सीखा भी. जितने भी हमारे बड़े हैं, गुरुजन हैं, जितने भी मेरे प्रोफेसर्स, टीचर्स रहे हैं, सभी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया. एंड आई रियली फील दैट आई एम ब्लेस्ड to have received the blessings of all the elders, all the teachers that I have had in my life. And it is because of them. If I am speaking today in front of you, it is all because of their good wishes, blessings. You believe in divine blessing? Absolutely. Everything is happening because of that. डॉक्टर साहिल, आपको काफी टाइम हो गया अब ये प्रैक्टिस करते हुए, लीगल प्रैक्टिस करते हुए. क्या बड़ी चुनौतियां आज तक आपके सामने आई? चुनौतियां इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस, मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू आर एंजॉयिंग द जर्नी, तो आपको वो चुनौतियां लगती नहीं है, वो चैलेंजेस लगते नहीं है. बिकॉज यू आर सो मच इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ योर जर्नी, यू आर सो मच एनग्रॉस्ड इन टू दैट कि आपको वो इवेंचुअली चैलेंजेस लगते नहीं है. आई वुड कॉल इट लर्निंग्स. पार्ट ऑफ जर्नी हो जाते हैं. पार्ट ऑफ जर्नी हो जाते हैं व्हेन यू आर सो एनग्रॉस्ड इन द प्रोसेस. सो लर्निंग्स की मैं बात करूं तो मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया. आई हैड नो बैकग्राउंड. ऐसा नहीं था कि देयर वाज समबडी हु वाज वर्किंग, मैंने किसी बहुत ही बड़ा लॉ ऑफिस कहीं ज्वाइन किया हो. सो व्हाटएवर केम माय वे आई स्टार्टेड लर्निंग. सो इनिशियली मुझे याद है कि देयर वाज अ क्लर्क, वो काफ़ी सीनियर क्लर्क थे, तो मैं उनके पास बैठा रहता था, उनसे पूछता था भाई कैसे करना है. आई शोड हिम माई फर्स्ट ड्राफ्ट. तो होता है कि आप अपना फर्स्ट ड्राफ्ट किसी अच्छे सीनियर को दिखाओ, बट मैंने ऐसा नहीं किया. आई शोड माई फर्स्ट ड्राफ्ट टू वन ऑफ आवर सीनियर मुंशीज इन द ऑफिस. सो मैंने उनको डरते डरते दिखाया, मैं ये देखिए इसमें क्या त्रुटियां. सो ही टोल्ड मी कि यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू दैट. चैलेंजेस नहीं है, दोज आर पार्ट ऑफ लर्निंग्स. अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो देर आर नो सच चैलेंजेस. आपको चैलेंजेस लगते नहीं है वंस यू स्टार्ट इंजॉइंग द जर्नी. फिर भी मैं कहूंगा कि इट इज ये एक ऐसा फील्ड है विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फोकस. मतलब आप सुबह बैठोगे, आप रात तक बैठे रहोगे, आपको बाहर होश नहीं होगी कि कब सनसेट हो गया, कब बाहर अंधेरा हो गया. इतना फोकस्ड रहना पड़ता है. सो कई बार हम सीनियर्स के साथ उनको ब्रीफिंग कर रहे होते हैं, उन्होंने हमें कोई रिसर्च वर्क दिया हो तो हम रिसर्च कर रहे हैं, जजमेंट्स ढूंढ रहे हैं. वी आर सो एनग्रॉस्ड इन द प्रोसेस. इनिशियली क्या होता है, आई वोंट कॉल इट अ चैलेंज, बट ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने ये सीख लिया है कि नए नए केस में हम किसी में रिसर्च कर रहे हैं, किसी में ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है. बिकॉज वी आर नॉट वेल इक्विप्ड कि इसमें क्या होना है, एंड वी डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेस. फिर एक केस में आप बिल्कुल ब्लैंक होंगे, जब आप नेक्स्ट केस अपना ट्राई करेंगे तो उसमें आपके पास 20% एक्सपीरियंस होगा फ्रॉम योर लास्ट केस.
तो होता क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप इस प्रोफेशन में मैच्योर होते हो, आपके लिए चीजें आसान बनती जाती हैं. सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ जर्नी. ये कोई आप कहो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. नो, इफ यू आर रियली इनग्रॉस्ड इन द प्रोसेस, यू विल लव द जर्नी. एंड इवेंचुअली, अब अगर पहला मैं कोई ब्रीफ पढ़ता था तो उसमें मुझे 4 घंटे लगते थे. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम अब मैं ब्रीफ शायद आधे घंटे में कर सकता हूँ. So this is all practice, day to day practice, and if you keep on working on your practice, so eventually it saves a lot of time. क्या कभी ऐसा भी मोमेंट आया लाइफ में कि आपको किसी गुनहगार को बचाना पड़ गया हो? Yes. Uh, कोई आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है इसका रिप्लाई देने में, आप कंफर्टेबल हो तो बताएं. I'll answer it in my own way, with my little experience. ऐसा नहीं होता. See, we don't see कि वो गुनहगार है कि नहीं है. What I feel is that if I am in a certain position and I have been bestowed with certain duties by Almighty God, then I need to perform it with the best of my abilities. अब मैं ये नहीं देखूंगा, I can't be emotional with the case. I just know that I have a certain duty. I have taken oaths, जो एडवोकेट्स एक्ट के अंदर एडवोकेट्स की ओथ है, मैंने वो ओथ ली है, एंड आई नीड टू स्टिक टू दैट. सो अगर कोई एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड ऑफ सम सर्टेन ऑफेंस, मे बी वो ऑफेंस इतना ग्रेव है कि द कॉन्शियस ऑफ द सोसाइटी इज शॉक्ड, बट ऑल्दो हिज गिल्ट हैज नॉट बीन डिटरमिन्ड येट. जब तक उसकी गिल्ट डिटरमिन नहीं हुई, उसको आपने कैसे कह दिया कि ट्रायल नहीं हुआ? एग्जैक्टली. जब उसका ट्रायल नहीं हुआ तो आपने उसको कैसे कह दिया कि वो गुनहगार है? He is just an accused till the time his guilt has not been proved. Yeah. So what my duty becomes, he should get a fair opportunity of representation in the court. उस वे में अगर मैं उसको कोर्ट में अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं, एंड अगर कोई फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस ने अपना काम ढंग से नहीं किया है, उसको एक्सपोज कर दिया, जिसकी की वजह से उसको कुछ बेनिफिट मिल गया, एंड बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से वो एक्विट हो जाता है, तो देन इन दैट केस व्हाट आई फील इज आई हैव डन माय ड्यूटी टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज. दैट इज इट. सो हम उसकी इंट्रिगिटीज में नहीं जाएंगे कि क्या हुआ, फैक्चुअली क्या था. ऑल ऑफ दैट इज लेफ्ट टू द अपर अदालत, दैट इज टू डिसाइड द मैटर. आजकल ना एक बहुत फैशन सा बन गया है ये कहने की जी इसका तो मीडिया ट्रायल हुआ है. मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, मीडिया ट्रायल क्या मतलब है इसका? जब जज बैठा है, एक लॉयर खड़ा है, एक एक्यूज खड़ा है, तो इसमें मीडिया का क्या मतलब हो जाता है? फिर भी लोग कहते हैं नहीं जी इस केस का तो मीडिया ट्रायल हुआ है. ये बहुत गलत है. मीडिया ट्रायल का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अभी तक कुछ फैक्ट्स नहीं आए होते, और ये हमने बहुत बार देखा है. हमने गुड़िया के केस में देखा है, हमने वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के केस में देखा है, एंड देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स. बहुत सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमने ये देखा है कि बिफोर अभी केस की तहकीकात शुरू भी नहीं हुई होती, और मीडिया पर्सन्स ने एक बंदे को पकड़ के उसको ऑलरेडी जो है वो गुनहगार साबित कर दिया होता है. इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट, नॉट द ड्यूटी ऑफ मीडिया. सो although media has got rights, they have got certain privileges as well, and they must work in their own limit, in their own sphere. ये तो उनकी बात हो गई. मेरा सबमिशन ये है कि किसी केस का मीडिया ट्रायल मान लिया कि हो भी गया, तो इसका कोर्ट रूम में क्या असर जाता है? देखिए, आफ्टर ऑल a judge is also human being. Yes. वो भी इसी सोसाइटी में रह रहे हैं, वो भी वही अखबार पढ़ रहे हैं, वो भी वही न्यूज चैनल देख रहे हैं. तो क्या जजेस का अखबार और चैनल देख के माइंड बनता है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. सी, अगर हम जुडिशियल सिस्टम की बात करें, वी हैव most of the time observed that judicial officers are upright, they are honest, and they are doing their best. आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारी इंडिया में जज पॉपुलेशन इतनी कम है, one single judge is loaded with more than lakh of cases in his courts. ये मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ. Even in cities they are loaded with thousands of cases. तो obviously I understand कि जो आपकी मीडिया है that has got some role to play, but good judges
Smart judges, intelligent judges, they only focus upon the facts, the evidence that is there in front of them. यही मैं आपसे सुनना चाहता था ना कि इस चीज का कोर्ट रूम में तो कोई इंप्रेशन नहीं होना नहीं चाहिए। होता, नहीं होता। ये मेरे को एक मूवी याद आ गई, 376 अमेजॉन प्राइम पे रिसेंटली मैंने देखी थी। सो अब आजकल क्योंकि इफ वी सी तो सारे वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स यस, एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव इमोशंस। तो कहीं ना कहीं उस मूवी में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि जजेस आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाटएवर इज हैपनिंग आउटसाइड कोर्ट रूम्स। कोर्ट रूम्स के बाहर क्या गॉसिप है, क्या बातें चल रही हैं, जजेस आर इफेक्टेड बाय दैट, ऑल्दो इट शुड नॉट हैपन। जजेस शुड स्ट्रिक्टली एंड प्योरली टेक इनटू कंसीडरेशन द फैक्ट्स, जो उनके पास तथ्य है इनसाइड द कोर्ट रूम, इनसाइड द कोर्ट रूम। एविडेंस चेक करनी है, माइन्यूटली चेक करनी है। कोई विटनेस कोर्ट में आके क्या बोल रहा है, उसका डिमीनर क्या है, क्या वो घबराया हुआ है, क्या वो खुल के बोल रहा है, क्या वो कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, ये सब चीजों को मतलब कंसिडर करके एक बहुत ही निष्पक्ष फैसला देना है। और उस निष्पक्ष फैसले में कुछ भी हो, चाहे वो एक्विट हो, कन्विक्ट हो, दैट इज समथिंग एल्स। वो उसकी वो है। डॉक्टर साहब, ये आप क्राइम इसके लीगल मैटर्स में भी डील करते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपको क्रिमिनल से कोई थ्रेट आई हो, कोई किसी ने आपको बुरा भला कहा हो चलते हुए, जिसके अगेंस्ट आपने केस लड़ा हो, कोई ऐसा वाकया आपकी जिंदगी में हुआ? व्हेन यू आर डीलिंग विद क्रिमिनल्स, आप क्रिमिनल प्रैक्टिस कर रहे हो तो दीज थिंग्स आर बाउंड टू हैपन। ये आप इसे एक्सेप्ट कर लो कि ये रोजमर्रा की चीज है, ये चलती होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक ओपिनियन देते हो आप एक लीगल एडवाइस देते हो, क्लाइंट उससे सहमत नहीं भी करते। क्लाइंट कहते हैं कि नहीं, आपको जैसा समझाया गया है आप वैसा कीजिए। और कई बार क्लाइंट की जो लैंग्वेज है या बोलने का तरीका है वो हार्श हो सकता है, वो थ्रेटनिंग हो सकता है, वो इनडायरेक्टली कुछ और भी कम्युनिकेट आपको करने की कोशिश कर रहा होता है। बट दैट इज अगेन पार्ट ऑफ प्रोफेशन, यू हैव टू डू योर जॉब। आपने अपना काम करना है टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, एंड आपने अपनी कॉन्शियस को कंसिडर करते बेस्ट एडवाइस जो आपको ठीक लग रही है आपकी नॉलेज के हिसाब से आपको वो देनी है। If he agrees to it, well and good. If he doesn't, then you have to leave his brief. That is what I have been told by my seniors. छोटे से शहर मंडी में आपका जन्म हुआ, लोकल स्कूल में आपकी जो पढ़ाई लिखाई हुई, इतने बड़े सपने क्या देखे थे आपने? मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, बचपन में तो आई वॉज अ नॉटी किड, बिल्कुल सीरियस नहीं था, खूब खेलना कूदना मस्ती करना। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ऐसे इतने सीरियस प्रोफेशन में आ जाऊंगा, इस चीजें इस तरीके के काम करूंगा। बट या वन डिजायर वाज देयर कि कुछ करना है, और अभी भी वो डिजायर है कि आगे कुछ करना है। मतलब फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए जो अपना पॉडकास्ट शुरू करूं, आम से खास के बजाय आम से हसन खास का करूं। आई होप सो, गॉड विलिंग। चलिए, जब आज आप एक ड्राइविंग सीट पे हैं, अपने प्रोफेशन को अपने हिसाब से ड्राइव कर रहे हैं, बैकव्यू मिरर में जब आप देखते हैं, क्या देखते हैं? लॉट ऑफ गुड मेमोरीज, लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। इतनी जगहों पे गए, लोगों से मिले, बातचीत की, उनसे कुछ सीखने को मिला, कई जगह डांट भी खाई, कई जगह तारीफ भी सुनी। सो लॉट ऑफ गुड मेमोरीज आई हैव, लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, एंड दैट इज व्हाट, मतलब आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इतना अच्छा लग रहा है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दोज बैगेज ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव गॉट विद मी। सो जो कुछ भी होता है लाइफ में, आई फील अगर आप जीत नहीं रहे तो इट इज अ लर्निंग। या दो ही चीजें होती हैं, या आप जीत जाते हो या आप सीखते हो। तो कई जगह हम जीते, कई जगह हमने सीखा। हारे कभी नहीं, हारे कभी नहीं। हार मन की बात है, हार मन की बात है। अगर मन में आ गया कि हम हार गए तो हार गए, और मन में आ गया सीख लिया। ये बहुत बड़ा मैसेज आज की जनरेशन के लिए आप दे रहे हैं, जो कि शायद अभी ये बात नहीं समझ पा रही आने वाली जनरेशन। वो जीत या हार में ही अपना माइंड रखती है, जबकि आप कहते हैं जीत गए तो जीत गए, हार गए तो सीख नहीं, सिर्फ सीखे ही सीखे। बहुत अच्छा बताया आप डॉक्टर साहिल। अब मैं बिल्कुल एक ऐसे सवाल पे आना चाहता हूं जिसका सारे ही लीगल सिस्टम के साथ बहुत बड़ा रिलेशन हो सकता है। उसे मैं कहूंगा एथिकल प्रोफेशन।
देखिए, आपका जो प्रोफेशन है इसे आप कोई भी नाम दे सकते हो, नोबल प्रोफेशन है, सर्विस में, पब्लिक सर्विस प्रोफेशन, कुछ भी है, लेकिन कुल मिला के इसके अंदर एक नैतिकता होती है। वो क्या चीज है जो इस प्रोफेशन को महान बनाती है? पुराने जमाने में क्या होता था, देखा जाए तो इसे न्याय का मंदिर कहा जाता है। यस, ऑफ कोर्स। दिस इज कॉल्ड टेम्पल ऑफ जस्टिस। टेम्पल ऑफ जस्टिस। पुराने जमाने में, और ये सचमुच मैंने बड़े बुजुर्गों से भी सुना और खुद भी देखा है कि कोर्ट रूम के बाहर जो लोग हैं वो अपने जूते उतारेंगे जैसे वो किसी मंदिर के बाहर उतारते हैं, और फिर वो कोर्ट रूम में आएंगे बिल्कुल सादर प्रणाम वही भाव लेके जैसा भाव वो एक मंदिर के प्रति रखते क्या हैं। सचमुच ऐसा कभी होता था? बिल्कुल, ये मैंने सुनी है बातें। और अभी रिसेंटली में एक बहुत ही हमारे कंट्री के सीनियर एडवोकेट हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट मैंने उन्हें ये करते देखा है। वो एक हमारी कंट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे थे, और मैंने देखा, खुद देखा, उन्होंने अपने जूते उतारे, वो डाइस की तरफ गए और उन्होंने पहले वहां प्रणाम किया और फिर अपने आर्गुमेंट्स जो है शुरू किए। तो ये लोग क्यों करते हैं, अगर आप समझें इसके पीछे का भाव, तो उनका भाव ये है, जो लोग अदालत में आ रहे हैं वो खुशी से तो नहीं आ रहे। यस। वो कोई परेशानी है, कोई दुख है, उसका निवारण करने आ रहे हैं वहां। और उनमें ये क्या भाव है कि उन्होंने सारे तरफ से, अपनी तरफ से सारे प्रयत्न कर लिए, लेकिन वो सारे प्रयत्न असफल रहे। तभी अल्टीमेटली उन्होंने, जैसे भगवान पे चीजें छोड़ देते हैं, वैसे उन्होंने न्याय के मंदिर में अर्पण कर दी चीजें कि जज साहब अब आप देखिए, आपने हमारा भला करना है, आपने हमें न्याय दिलाना है। तो ये एक जो भाव है, मैं बोलता हूं कि एथिकल प्रैक्टिस की आज हम बात कर रहे हैं, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ एथिकल प्रैक्टिस। अगर आप ये नोबल भाव लेके जाएं, वी आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, लिटिगेंट्स हैं कोर्ट में, और बहुत सारे लोग हैं जो अपना किरदार पूरा कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, कोई कोर्ट रूम बॉयज हैं, कोई पीएन्स हैं, कोई नैब कोर्ट है, सारे अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अगर ये सभी लोग अपनी भूमिका उस सच्ची निष्ठा के साथ निभाएं, तो ये न्याय प्रणाली का जो काम है ये बहुत अच्छा होगा, और अल्टीमेटली जो लोग हैं जिस पर्पस के लिए वो आ रहे हैं वो पर्पस अचीव होगा और सबको न्याय मिलेगा, और न्याय देने वाले को भी खुशी मिलेगी, उसने न्याय किया। बिल्कुल। तो एथिकल प्रैक्टिस की हम बात करें तो अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो हम वी आर गवर्न्ड बाय एथिक्स। हम पे बहुत सारे रूल्स लगते हैं, कानून लगते हैं, लॉज हैं, विच वी आर बाउंड बाय एंड विच वी हैव टू फॉलो। कोर्ट रूम एटिकेट्स होते हैं। आप जब किसी कोर्ट रूम में एंटर करें, यू हैव टू बाउ डाउन टू द चेयर, नॉट टू द जज, टू द चेयर। आप ये नहीं देखेंगे कि कौन इंसान उस कुर्सी पे बैठा है, आप ये देखेंगे कि वो न्याय की कुर्सी है। एग्जैक्टली। यस। कोर्ट रूम आजकल तो मैं देखता हूँ बच्चों को बहुत ही इनफॉर्मल लैंग्वेज का कोर्ट में प्रयोग कर रहे हैं, या यू नो ऐसे शब्द। कोर्ट रूम में लीगली स्पीकिंग these kind of words are not accepted. एक बहुत ही polished language है. It is a profession that have been carried for so many centuries. और इसकी एक legacy है इस profession की. Yes. So my message through your channel to all the young budding lawyers would be to respect the etiquettes that we have, courtroom mannerism that we have, and address the court in the most appropriate way. ये courtroom ethics हैं, to bow down, to address your arguments in a polite way, very important. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर मैंने देखा है दो वकील आपस में बहस करने लग जाते हैं। एक वकील ने एक बात कही, दूसरे वकील ने उसकी बात काटी, तीसरे ने कुछ और कहा, उसने कुछ और कहा। नो, दिस इज नॉट द प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट। मूट कोर्ट्स में, जो कि लॉ कॉलेजेस में सिखाया जाता है, दैट इज द करेक्ट प्रैक्टिस। आपको अपने आर्गुमेंट्स जज को पेश करने हैं, जज को पेश करने हैं, चेयर को एड्रेस करने हैं। यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट अप अ फाइट विद द अदर एडवोकेट। यस। और कभी अगर ऐसा माहौल हो भी जाए तो वो कोर्ट रूम लगता ही नहीं है, वो की बात हो जाती है। exactly. वो एथिकल नहीं रहता, इट मोर, कोर्ट रूम जो है दैट इज अ प्लेस वेयर यू आर प्रैक्टिसिंग लॉ
एंड वेन एवर यू आर एड्रेसिंग यू हैव टू एड्रेस टू द चेयर. आप अपनी तरफ के आर्गुमेंट्स रखिए, दूसरी पार्टी, फिर आप बैठ जाइए, फिर दूसरी पार्टी विल स्टैंड अप एंड दे आर गोइंग टू एड्रेस देयर आर्गुमेंट्स. इसके बीच में आप आपसी कॉन्फ्लिक्ट जो है अगर उसे अवॉइड करें देन इट वुड बी एन एथिकल प्रैक्टिस. एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि कई बार मेरे ही कोलीग्स और कई बार हम भी केस से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि हम उसे एक पर्सनल मैटर मान लेते हैं. So again, this is also a very important practice that you are not to get attached with your own case in a personal way. आप उसको एक professional capacity में लड़ें. You should not forget, you are an officer of the court first, and then secondly, you are the mouthpiece of your client. Yes. पहली आपकी ड्यूटी कोर्ट की तरफ है. Yes. दूसरी ड्यूटी है आपकी कि जो आपका क्लाइंट है उसको आप अच्छे वे में उसकी बात को लीगल वे में प्रेजेंट करने के लिए. एग्जैक्टली. डॉक्टर साहिल बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और ऐसी बातें भी बताई आपने जो एक आम आदमी को नहीं पता है. डॉक्टर साहिल, मैंने सुना आपके अंदर एक पोएट छुपा हुआ है. इस छोटी सी उम्र में इस शौक का पहले मुझे राज बताएं और फिर कोई नमूना दे मेरे को. राज तो कोई राज नहीं है ये. बचपन में घर में जैसे पिताजी को सुना करते थे, वो शायरी करते थे, और दादाजी को सुनते थे, वो शायरी करते थे. तो 5-6 साल उम्र होगी, मुझे अल्फाज ढंग से बोलने भी नहीं आते थे. मुझे मतलब तो दूर की बात, अल्फाज ढंग से बोलने भी नहीं आते थे, पर जो वो बोलते थे उनके पीछे पीछे दोहराता था तो अच्छा लगता था. तो जब थोड़ा समझ आई तो फिर इसमें थोड़ा और इंटरेस्ट जागा. तो 2 लाइनें सुनाना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो. अरे कमाल है. कहता है, बगावत की जिंदगी हम जिया नहीं करते, पीछा कभी किसी का हम किया नहीं करते. बगावत की जिंदगी हम जिया नहीं करते, पीछा कभी किसी का हम किया नहीं करते. जो तुम में ताकत है तो बदल लो ये दिल, वरना ये दिल हम किसी को दिया नहीं. कमाल है. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिल आपका मेरे शो पर आने के लिए. आज आपसे बहुत अच्छा वार्तालाप हुआ. उम्मीद है मेरे दर्शकों को इनमें से बहुत सी अपने काम की चीजें मिलेंगी. नहीं मिलेंगी तो हम उनसे आपका संपर्क करा देंगे, आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे. वो आज दर्शकों के लिए इतना ही. ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो फायदा आप उठा रहे हैं और दूसरे लोग भी उठा रहे हैं, आप भी उठाएं, दूसरे लोग भी फायदा उठाएं. इसी में हमारी कामयाबी है. डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने के लिए. आज ही नहीं भरा, एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में. थैंक यू. धन्यवाद.